question is, if alpha equals log of tan pi by 4 plus theta by 2, pi by 4 plus theta by 2, then prove that. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ बुक्स में 4 पार्ट्स हैं और कुछ कुछ बुक्स में 2 ही पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके 2 पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं. द फर्स्ट पार्ट इज tan hyperbolic alpha by 2 equals tan theta by 2. और ऐसे ही एक और पार्ट है इसका जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, फोर्थ पार्ट, और यही पार्ट ऐसा है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है. द पार्ट सेज, दिस पर्टिकुलर पार्ट सेज, if alpha equals theta plus a3 theta cube plus a5 theta to the 5 and so on, then theta equals alpha minus a3 alpha cube plus a5 alpha 5 and so on. ठीक है, तो देखिए जैसे ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स ये जो इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ज्यादा फंसते भी हैं बच्चों के, तो ये 2 पार्ट्स कैसे करने हैं हम लोगों को, तो ये समझ लीजिए हल्का सा. फर्स्ट पार्ट तो कंपैरेटिवली बहुत इजी सा है. फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर if you take anti-log, so this becomes e to the alpha is equal to what? Tan pi by 4 plus theta by 2. So this is tan a plus b, and it will be tan pi by 4 plus tan theta by 2 upon, okay, and tan pi by 4 1 होता है तो हो जाएगा 1 plus tan theta by 2 upon 1 minus tan theta by 2. ठीक है, अब अगर आप इस e to the power alpha को रीराइट करिए, और इसको कैसे रीराइट करिए, e to the power alpha by 2 upon e to the power minus alpha by 2. ओके, तो ये वापस आपका e to the power alpha बन जाएगा. और आफ्टर दैट अगर आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करें, तो इफ यू use componendo and dividendo here, then it will give you what? It will give you e to the alpha by 2. और जैसे कि आप लोगों को क्या बनाना है, आपको बनाना है tan hyperbolic alpha by 2. ठीक है, तो आप पहले क्या बनाएंगे, साइन ऊपर न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में cos, या e to the power alpha by 2 माइनस आप पहले करोगे माइनस alpha by 2 upon e to the power alpha by 2 plus e to the power minus alpha by 2, right? Numerator minus denominator. The same treatment has to be done here also. So क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 plus tan theta by 2 minus 1 minus tan theta by 2. So it gives you 2 tan theta by 2, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, right? So this 2 gets cancelled and you ultimately get this is tan hyperbolic alpha by 2. So you get tan hyperbolic alpha by 2 is equal to tan theta by 2, right? तो देखिए ये पार्ट तो बहुत, जो फर्स्ट पार्ट है, this first part, it is very easily proved. Now let us try to prove this fourth part, which is a difficult one. You cannot say only difficult, it's a tricky one. Okay, so difficult से भी ज्यादा बेहतर होगा इसको ट्रिकी वन कहें. तो कैसे करना है इसको चलिए समझते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि you don't have to prove this, that alpha equals theta plus a3 theta cube plus a5 theta to the power 5. No, not this. It is actually given here, and you have to prove that theta equals alpha minus this. And one more thing that is given to you, एक और चीज आपको गिवन है, वो है अल्फा इक्वल्स log tan pi by 4 plus theta by 2. तो आपको इसको
और इसको दो बातों को मिला करके आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। मैं अगर इस क्वेश्चन को फोर्थ पार्ट को समझाने के लिए रीराइट कर लूं, चलिए एक नेक्स्ट पेज पर फिर से इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। और हाँ, बिफोर व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस फोर्थ पार्ट, we have already proved this first part, so if I need, I will use this first part also in proving this fourth part. Okay, so now let us rewrite this question. What is given? So now given is alpha equals given is alpha equals log tan, and it was pi by 4 plus theta by 2. And what is also given? And it is also given that alpha equals theta plus a3 theta cube plus a5 theta to the 5 and so on to infinity. So I have combined those two different statements which were given to us. Okay, now अब यहाँ पर जो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसे हैंडल करोगे, ठीक है। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, टारगेट है हमारा थीटा को फाइंड करना। यहां पर अल्फा इक्वल्स अल्फा इज एक्चुअली अल्फा इज रिटन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अल्फा थीटा के फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, और उसका एक्सपेंशन ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन थीटा की पावर में इसको इन्होंने दे दिया है कि यही एक्सपेंशन है। आपका टारगेट क्या करना है कि जैसे आप कहते हैं ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x क्या होगा, साइन इनवर्स y। मतलब अगर y x का फंक्शन दिया है तो आपको x को y के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो व्हाट योर टारगेट इज, योर टारगेट इज to write theta in powers of or in terms of alpha, right? So you have, your target is theta equals, आपको जो प्रूव करना है वो है अल्फा माइनस a3 अल्फा क्यूब प्लस a5 alpha 5 minus and so on to infinity. This is your target. To get this done, what I recommend here कि अगर आप इसमें, और वो ट्रिक को अच्छे से आपको समझिएगा मैं क्या क्यों ऐसा कह रहा हूं, अगर आप यहां पर ये प्रूव कर ले जाए कि अल्फा के प्लेस पर आई थीटा अगर आ जाए, ये पूरी ट्रिक है, ये रफ वर्क है, दिस इज नॉट ए फेयर वर्क। अगर अल्फा के प्लेस पर आई थीटा आ जाए और थीटा के प्लेस पर आई अल्फा आ जाए, ठीक है, तो मतलब इफ यू कैन show, sorry, if you can show, क्या शो करना आपको, देखिए मैं जो कह रहा हूं आई थीटा, मतलब यहां अल्फा के प्लेस पर आई थीटा आ जाए, आई थीटा इज इक्वल टू लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा के प्लेस पर आई अल्फा अपॉन 2। अगर आप ये शो कर ले जाए, ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जैसा कि यहां पर ये दिया हुआ है कि log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस a3 थीटा क्यूब प्लस a5 थीटा टू द 5 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ थीटा की जगह पे 5 लिखा होता तो क्या होता, अगर यहाँ थीटा की जगह पे 5 लिखा होता तो आ जाता 5 प्लस a3 5 क्यूब प्लस a5 5 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो उसी तरह से जब ये मैं बात कर रहा हूं कि एक तरीके से थीटा यहाँ पर एक वेरिएबल है, वही थीटा की पावर्स में यहाँ पर ये एक गिवन है ये पूरा, तो अगर आप ये प्रूव कर लोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि थीटा के प्लेस पर से आई अल्फा आ गया है, तो ये पूरी ये जो गिवन है सीरीज, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आई अल्फा प्लस a3 आई अल्फा क्यूब्ड a5 i alpha to the 5 and so on। यहां से आप क्या कर सकते हो, you can take i common, separate it out, alpha and this i cube होता है माइनस i कॉमन है, माइनस a5 alpha to the 5, फिर i to the power 5 जो होता है वो प्लस i होता है, i आप बाहर कर चुके हो, प्लस a5, सॉरी इट इज alpha cubed, it is alpha
cubed here, and this is alpha to the 5 and so on to infinity. Now if you just compare imaginary parts, आपको क्या मिला? आपको मिला थीटा इक्वल्स अल्फा माइनस a3 है। ये मैंने लिखा है, ये बोला a3 था, थीटा माइनस a3 अल्फा क्यूब। देखिए ये a3 अल्फा क्यूब प्लस a5 प्रूव हो गया। मतलब जो आपको प्रूव करना है वो आप प्रूव कर सकते हो, बस आप एक छोटी सी एक ट्रिक फॉलो अगर करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और ट्रिक क्या है? आपको प्रूफ क्या करना है? ठीक है, आपको प्रूफ, इसको प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है, ये कि इफ यू कैन शो दैट दिस आई थीटा इक्वल्स दिस। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जैसा हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोगों ने जैसे प्रीवियस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो प्रूव किया था उसकी मदद ले लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? हम लोगों ने प्रूव किया था tan हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इसी की मदद लेते हैं। सो tan hyperbolic alpha by 2 is equal to tan theta by 2। ये हम लोग कर चुके थे। अब अगर हम लोग tan hyperbolic alpha by 2 को लिखें, देखिए हम लोग जानते हैं कि tan ix जो होता है वो होता है I tan hyperbolic x। ठीक है, तो यहां से tan hyperbolic x की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन I tan ix। तो उसी तरह से अगर हम लोग tan hyperbolic alpha by 2 की जगह लिखेंगे, we will write 1 over I tan I alpha upon 2। Got my point? And tan theta by 2, yes, it is sin theta by 2 divided by cos theta by 2। ठीक है, अब एक काम हम लोग ये करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2, और दूसरी तरफ आपको मिलेगा यहां पर अपॉन 1 कर लीजिए, 1 अपॉन tan I अल्फा बाई 2। और एक i आपको एडिशनल मिल रहा है, ये देखिए 1 अपॉन i। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया है तो i न्यूमरेटर में क्या होगा, फिर आप इस तरफ ले आइए उसको, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ यू अगेन यूज सेम c and d, componendo and dividendo। so what will you get? You will get cos theta by 2 plus I sin theta by 2, and cos theta by 2 plus I sin theta by 2 मतलब e to the power I theta by 2, और फिर नीचे आप माइनस करिए तो e to the power माइनस I theta by 2, और इस तरफ आपको क्या मिलेगा 1 प्लस सेम ट्रीटमेंट जो आपने उधर किया है वही आप इधर करोगे, I अल्फा by 2 अपॉन 1 माइनस tan I अल्फा by 2। ठीक है, I अल्फा by 2, और ये आपका बन गया e to the power I theta is equal to, this is tan pi by 4 plus I alpha by 2, and you just take log both sides, then you get I theta is equal to log tan pi by 4 plus I alpha by 2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर हम लोग यही प्रूव कर ले जाएं, और उसके आगे का काम तो आप जान ही रहे हो। देखिए यस, I theta is equal to log of tan of this। देखिए ये देखिए, इफ यू कैन शो I theta is equal to log of tan, उसके बाद आप सीधे जो आपको ये गिवन है इसको यूज करेंगे I अल्फा के लिए, आपका काम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस विद अ ट्रिक। नाउ अब हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले, स्पेशली तो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट आप लोगों का चल ही रहा है। वेक्टर कैलकुलस वाले पार्ट में आप लोग जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मंडे को मैं उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, और साथ ही साथ में मंडे को मैं फिर उसमें एकदम से आगे बढ़ूंगा। फिर आप लोगों को समझ में तभी आएगा जब आपने पूरा वेक्टर कैलकुलस जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है वो देख लिया होगा।
ठीक है। और जहां तक ट्रिग्नोमेट्री की बात है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं आज की इस क्लास में। सो एक बहुत थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं चीजों को फिर से रिवाइज कराने के लिए एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे कि लेट अस ट्राई टू फाइंड log ऑफ -3। log ऑफ -3, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि log का तो डोमेन जो है वो तो पॉजिटिव रियल, जीरो से बड़े नंबर्स के लिए है। ठीक है, log का डोमेन जीरो से बड़े रियल नंबर्स के लिए है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, log को उन नंबर्स लाइक नेगेटिव नंबर्स के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो जीरो को छोड़ करके ना, जीरो के लिए नहीं डिफाइन करेंगे, बाकी सबके लिए हम लोग log फाइंड कर रहे हैं। और कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x squared plus y squared plus I tan इनवर्स y over x। या आप ऐसे भी कह सकते हो log ऑफ z इज इक्वल टू, क्या था ये था log mod z प्लस I आर्ग्यूमेंट z। यहां पर भी कुछ मैंने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के लिए कुछ बताया था। यहाँ 2n pi i ऐड हो जाता है ना, इस वैल्यू में जो आपकी ये वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होने के लिए कुछ जरूरी था कि आर्गुमेंट z की वैल्यू किसी स्पेसिफिक रेंज हो, उसके बीच में हो। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जैसे अगर आप log ऑफ -3 फाइंड कर रहे हो तो बहुत आसानी से कर लोगे इसको, है ना। क्या बन जाएगा, -3 का मॉड तो 3 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ -3, और वो 3 है, प्लस I आर्ग्यूमेंट ऑफ -3, है ना। और ये हो जाएगा log ऑफ 3 और आर्ग्यूमेंट -3, नेगेटिव रियल नंबर, प्योरली सॉरी नेगेटिव रियल नंबर्स, यस नेगेटिव रियल नंबर्स का जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो आपका किस तरफ होगा, ये इस तरह से, ये इस तरफ है, ये -3, तो पाई, है ना, पाई एंगल, तो कितना हो जाएगा, I पाई। So log of -3 you can write it as log of +3 plus I पाई। समझ में आ गया। तो अगर log of 3 तो आप पहले से जान रहे हो, बेस ई है, ठीक है, यहाँ पर बेस ई है, तो बेस 10 पे अगर आप जान रहे हो तो बेस ई पे कन्वर्ट कर लोगे, उसमें आई पाई ऐड करोगे, एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड log of -3। सपोज लेट अस if you want to find the general value of log of -3, then you just need to add 2n pi I to it, 2n pi I plus log 3 plus pi I। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अगर आपसे कह दिया गया कि आप फाइंड करो log ऑफ 5, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो log ऑफ 5 जो हो जाएगा, ये मैं जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए यहां पर कुछ करना ही नहीं है, ये 5 जो है, ये 5 एक रियल नंबर है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस केस में जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ये तो जनरल वैल्यू आप लिख रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू आप सीधे जो होती है वही लिख देंगे, log 5, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से ही आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हो कि log ऐसे नंबर्स के लिए तो डिफाइंड है। You just need to add 2n pi I, and you just if you add 2n pi I, this gives you general value of log of 5। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक, चलिए एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, एक आसान सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल इजी सा ले लेता हूं, जैसे कि log a plus ib divided by a minus ib is equal to 2i tan inverse b upon a। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल आप log a plus ib लिख लेंगे, 1/2 log a squared plus b squared plus I tan inverse b by a, और फिर log ऑफ a minus ib सीधे इसका कॉन्जुगेट है, तो हो जाएगा 1/2 log ऑफ सेम a squared plus b squared, and you get minus I tan inverse b upon a। ठीक है, आप केवल सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि log ऑफ m upon n, ठीक है, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट होकर के जो आपको ये है, ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस गेट्स कैंसल्ड एंड दिस गेट्स
एडेड 2i tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर मुझे जो इसमें ऐड करना था, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, मैं सीधे एक जनरल मैं इंट्रोडक्शन देते हुए ही समझा दे रहा हूँ। जैसे कि जैसे अब मुझे बात करनी थी, जहां मुझे ध्यान आ रहा है मैं शुरू कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का सा और समझाते हुए आगे चल रहा हूँ। a टू द पावर z की हम बात कर रहे थे जहां तक है, और एक्सपोनेंशिएशन, यस। तो a टू द पावर z की जब हम लोग बात करेंगे, और उसमें भी इंटरेस्टिंग क्या होगा कि दिस a इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ a एंड z आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, for example, suppose you are interested in finding 1 plus 2i to the power 3 plus i, समझ में आया? तो 1 plus 2i to the power 3 plus i। और इसमें और काम जो आपके लिए होगा वो यही है कि आप इसको a plus ib यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए मैंने बताया था और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि a टू द पावर z को आप लिख सकते हो e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर z। बहुत सिंपल है। जब आप यहां भी बेस e लीजिए, तो जब e पावर log और वो भी बेस सेम e रहेगा, तो ये सीधे a पावर z होता है। हम लोग इंटरमीडिएट में आप लोग देख चुके हो। और इसको आप कह सकते हो e टू द पावर z log a, राइट? यहां z और a दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बेस e है। ये तरीका है। अगर अगर आपसे कोई कहता है कि a टू द पावर z की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे होंगे, तो वो जो आता है ना आर्गुमेंट वाला पोर्शन, वो वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में रहेगी। और अगर कोई आपसे कहता है कि फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ a टू द पावर z, तो जनरल वैल्यू ऑफ a टू द पावर z क्या हो जाएगी? जनरल वैल्यू ऑफ a टू द पावर z जब आपको फाइंड करना होगा, तो आप e टू द पावर z, जो यहां पर आप लॉग ले रहे हो, फिर वो जनरल लॉग लोगे। जैसे यहां प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हो, यहां पर आप जनरल वैल्यू लोगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल या एक और रिजल्ट कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सेपरेट अल्फा प्लस आई बीटा पावर p प्लस आई क्यू, अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर p प्लस आई क्यू इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको e टू द पावर z log a, मतलब e टू द पावर p प्लस आई क्यू इंटू लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, और आगे का काम बहुत आसान है। क्यों? आप लोगों को मैंने सब कुछ बता जो रखा है। देखिए, लॉग ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा को आप जानते ही हो कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा p प्लस आई क्यू, और ये बन जाएगा आपका 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। और फिर इसको आप लिख लो e टू द पावर से, आप इसको लिख लो e टू द पावर a प्लस आई बी कर लो, a प्लस आई बी। बताओ a क्या होगा? ठीक है, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसमें रियल पार्ट आ रहा है वो a है। तो a आपका हो गया p/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हाँ, रियल पार्ट के लिए आपको i और i मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा। तो माइनस q, क्योंकि आई स्क्वायर -1 है, तो q tan वर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये देखिए, ये बन गया a, और b क्या हो जाएगा? b के लिए इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के q/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, p हो जाएगा q/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और p प्लस p tan इनवर्स बीटा
डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक, सो ये ए और बी की वैल्यूज हैं, ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आसानी से। आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट था कि आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करोगे, तो आप इसको लिख लो e टू द पावर a अलग और e टू द पावर i भी अलग। ठीक है, पहले पहले जो पावर में नंबर है उसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पे सेपरेट करते हैं, फिर दोनों अलग करते हैं, और फिर आयलर्स फॉर्मूला e टू द पावर i b के लिए cos b प्लस i sin b। ठीक है, तो आपका रियल पार्ट आ जाएगा e पावर a cos b, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा e पावर a sin b। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर p प्लस आई क्यू को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर लिया है। ठीक, चलिए इसके ऊपर हम लोग एक आसान सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है i to the power I is equal to e raised to the power minus 4n plus 1 pi by 2। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको तो सब जान ही चुके हो, बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। i टू द पावर i टू द पावर i को आप लिखोगे, इसको आप लिखोगे e टू द पावर z log a, मतलब i log i। और एक चीज और, एक यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, हम लोग को चाहिए कौन सी वैल्यू, n के टर्म्स में, है ना। n के टर्म्स में मतलब हम लोग को चाहिए जनरल वैल्यू, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जनरल वैल्यू लूंगा। ठीक है, ठीक ना, इसको मैं अलग से फाइंड कर लेता हूं, log i। देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log होती है, i की वैल्यू जो होती है, i कहां है, i आपका यहां पे है, दिस इज i, पाई बाई 2, आर्ग्यूमेंट इसका है पाई बाई 2, और i का मॉड 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ i, है ना, log ऑफ मॉड ऑफ i log 1 प्लस i, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट है पाई बाई 2, तो आपका कितना है, log 1 0 होता है, तो कितना आ गया, i पाई अपॉन 2, सो दिस इज log i। एंड देन आपका जो ये log i जनरल वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आप क्या ऐड करोगे, 2n पाई i, यस 2n पाई i प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आई है, पाई i बाई 2, पाई i बाई 2, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर आपका, आप एक काम करो पाई बाई 2 कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो एक तरीके से यहाँ पर, तो 4n और ये पाई बाई 2 में कुछ नहीं बचा, यानी प्लस 1। ठीक है, देखिए प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है काफी अच्छा, i टू द पावर a, है ना, i टू द पावर a इज इक्वल टू cos, यहां पर इट इज नॉट गिवन, इट शुड हैव बीन गिवन कि a जो है, आई थिंक यस दिस a इज रियल नंबर हियर, यहाँ पर जो a दिया है ना, यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर है, और आपको प्रूव करना है कि i टू द पावर a इज cos ऑफ 2m प्लस 1 अपॉन 2 पाई a प्लस i sin and again 2m plus 1 upon 2 पाई a। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, क्या करोगे, वही e टू द पावर a log i और उसमें जनरल वैल्यू कर लोगे। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग अपने होमवर्क के लिए आप लोग एक तरीके से जो पूरा लॉग वाला चैप्टर है, मतलब जो आपका ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला है, वो पूरे चैप्टर 2 पार्ट्स में आप बांट सकते हो। पिछला पार्ट हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस और थ्योरी कर ही रहे थे, और आज जो एक तरीके से रिवाइज कराया है और साथ ही साथ में कुछ और ऐड किया है, मतलब हम अगर a टू द पावर z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर करके दिया हो, तो किस तरह से हम लोग यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। ठीक है, या कुछ आपको प्रूव करना हो तो किस तरह से आप उनको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आके कंपेयर कर लोगे और कंपेयर करके प्रूव भी कर सकते हो। तो आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में सब दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आप लोग इसमें ट्राई करना शुरू कर दीजिए।
हम लोगों को नेक्स्ट टर्म पे करना है, और उस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कुछ होमवर्क करना है। वो ये है कि आपको 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस आई, ठीक है। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर लीजिएगा। रियल इमेजिनरी पार्ट्स में इसको सेपरेट कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसका मॉडुलस मुझे चाहिए बेसिकली। तो चलिए आप बस इतना करिएगा कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है।